Good morning, students. So, the next session in our list is session number 12, that is describing a lost item. So, when you need to describe something that you have lost somewhere, so we used to describe some features of that particular item. So, we will be going through this session and we will be understanding what all words and what all things we need to explain about a thing when it is lost. All right. So, let us see a scenario. Describing a lost event is a simple matter of stating the features of the item that may help in identifying it. All right. For example, to describe a book you have lost, you could describe its following attributes. अगर आप लोगों से कोई बुक खो गई है और आप उसको ढूंढ रहे हो तो क्या एट्रीब्यूट सामने वाले को बता सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सके. सो द नेम ऑफ द बुक, दैट इज द मेन आइडेंटिफिकेशन. देन ऑथर्स नेम, size of the book, even the description of cover or publisher's name. These are all things that can be said to somebody, or these are some features that can be said to somebody for describing some item that has been lost. All right. And there are some words that are used to express the quantity of things that can be counted, and some words that are used to express the quantity of things that cannot be counted. ये अपन ने पिछले चैप्टर में देखा था, पिछले सेशन में, दैट वाज रिलेटेड टू क्वांटिफायर्स. वहाँ पर अपन ने ये देखा था कि कुछ काउंटेबल नाउन्स के लिए वर्ड्स अलग यूज़ होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं, और कुछ दोनों जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं. तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हुई हैं कि क्या क्या वर्ड्स और फ्रेजेस आप लोग यूज़ यहाँ पर कर सकते हो. तो ये भी यूज़ किए जा सकते हैं. जैसे कि कोई ऐसी चीज़ लॉस्ट हो चुकी है जिसकी कुछ क्वांटिटी है, तो वो बताने के लिए आप लोग इन पर्टिकुलर चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हो. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. गिविंग यू अ मिनट, जस्ट गो थ्रू दीज एग्जांपल्स एंड वी विल मूव फॉरवर्ड देन. These are some example sentences which are given to us that can describe some quantifiers. So you can go through these sentences and understand what quantifiers are used and in which category they generally come. The category can be seen from here: countable, uncountable, and both. And these are the sample sentences. Now after this, they have given us an exercise. In this exercise, what they have told us, these pointers are given: mobile phone, Nokia 0010, black color, lost while traveling in a train. Date is given, train is given, Allahabad to Delhi. Train name is given, compartment number, berth, and sleeper class. Everything about some event, I think, that took place during that losing of an item. So that has been given over here, and they have given us some conversation between a policeman and the complainant. So they are talking about this lost item, and the complainant will be describing an item. So there are some blanks which are given to you. All those blanks will be filled by these pointers which are given to you above these fill in the blanks. So you have to solve this exercise and take the photo of that and send me on my WhatsApp number so that I can check whether you have done it correctly or not. Same goes with these assessments. Assessments are again, you have to fill it with the correct quantifier which is given in the bracket. So this is also is supposed to be solved by you and sent to me on WhatsApp. If some corrections, if something is wrong, so I would be letting you know. Next is again fill in the blanks. You have to put correct quantifier. There are 3 choices now, out of which you have to put any one. That will be the correct one. There are 10 sentences around, so this is up to you. This you have to solve. You have to send me the screenshot. I will be writing down in my copy who has sent me and who has not. So please send me after solving this exercise. Next session that we will be going through is appreciating someone. Now appreciating someone means what? किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, है ना. कभी कभी क्या होता है, किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करने से क्या होता है कि सामने वाले को द अदर पर्सन फील्स वेरी गुड, अच्छा लगता है. आप लोगों ने कुछ किया और अगर उस चीज़ को अप्रिशिएट कर दिया जाए, वेरी गुड, वेल डन, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे अप्रिशिएट किया. द वैल्यू ऑफ माई वर्क हैज़ बीन काउंटेड, है ना. तो इसलिए अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होता है. तो यहाँ पर एक पैराग्राफ उन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ पर एप्रिसिएशन क्या रोल प्ले करती है, तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है. जैसे कि व्हाट एप्रिसिएशन डज, इट्स लिफ्ट्स
योर हार्ट एंड मेक्स द डे टू डे स्ट्रेसेस दैट यू फेस मोर मैनेजेबल। है ना, आप लोग स्ट्रेस में हैं, बट आप लोग जो टास्क कर रहे हो उसके लिए अगर आपको कोई अप्रिशिएट कर दे, so you will be filled with more, what you can say, it will lift your heart and you will be filled with more feelings and you will be doing it with more efforts। है ना, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। एप्रिसिएशन जनरली कब किया जाता है, तो एप्रिसिएशन जनरली हम लोग कब करते हैं, व्हेन समवन हैज़ डन समथिंग फॉर विच दे आर ग्रेटफुल और थैंकफुल, और समवन हैज़ डन समथिंग प्रेज वर्दी। जब ऐसा कुछ होता है कि किसी ने कुछ ऐसा किया है कि जो कि बहुत ग्रेटफुल है और जो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करने वाली बातें रहती हैं, उसके लिए अगर किसी ने कुछ किया है, बहुत अच्छा किया है, ग्रेटफुल किया है अपने लिए, तो उस सेंस में हम अप्रिशिएट करते हैं। या तो फिर किसी ने कोई प्रेज वर्दी काम किया है तो हम अप्रिशिएट करते हैं। देयरफॉर अप्रिशिएशन में बी शोन नॉट ओनली व्हेन समवन हैज़ डन यू अ फेवर, बट ऑल्सो व्हेन अ पर्सन हैज़ डन समथिंग गुड और एडमायरेबल। तो उस सेंस में भी हम अप्रिसिएशन करते हैं। अब अप्रिसिएशन अगर करते हैं तो कैसे अप्रिशिएट करते हैं, तो वहाँ पर अप्रिशिएट करने के कुछ इन्होंने सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जैसे थैंक्स अ लॉट, थैंक्स यू आर अ लाइफ सेवर, थैंक्स आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक्स यू रियली मेड माई डे। सो ये जब कोई अपने को फेवर करता है, हमने कुछ बोला कि क्या आप हमारे लिए ऐसा कर देंगे, और अगर वो कुछ कर देते हैं हमारे लिए जो हम चाहते हैं, तो हम जनरली इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। और जब कोई काम किसी को दिया जाता है और वो काम को अच्छे से कर लेता है, तो उसके लिए हम क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ग्रेट जॉब, वेल डन, नाइस वर्क, गुड वर्क, कीप इट अप, यू डिड वेरी वेल, कीप अप द गुड वर्क, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। कभी कोई जूनियर है काम पे और उसको आपने कुछ काम दिया है और अगर वो अच्छे से कर दे, सो फॉर अप्रिशिएटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन यू कैन यूज़ दीज पर्टिकुलर सेंटेंसेस। ऑल राइट, व्हेन समवन हैज़ परफॉर्म्ड वेल, जब कोई सिंगर या कोई डांसर अच्छा परफॉर्म करता है, आप लोग ने रियलिटी शोज़ देखे होंगे डांस वाले और सिंगिंग वाले, तो वहाँ पर ऐसी टर्म्स जनरली यूज़ किए जाती हैं। जैसे देखो पहला वाला, दैट वाज अ ग्रेट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, दैट वाज एन एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, दैट वाज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो ये कुछ सेंटेंसेस है जो यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। यू परफॉर्म वेरी वेल, आई एन्जॉयड योर परफॉर्मेंस। तो ये कुछ सेंटेंसेस है जो कि यूज़ किए जाते हैं जब कोई सिंगर या डांसर अच्छा परफॉर्म करता है तब। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, व्हेन समवन शोज कंसर्न एंड सपोर्ट। जब कोई कंसर्न शो करता है, कोई सपोर्ट शो करता है, कंसर्न होता है मतलब कि समझता है आपकी चीज़ों को, तो तब आप क्या बोल सकते हैं, तो आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, थैंक यू फॉर योर कंसर्न, थैंक्स फॉर द सपोर्ट, आई रियली नीड इट, थैंक्स फॉर स्टैंडिंग बाय मी, मेरे साथ खड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, अप्रिशिएटिंग समवन क्लोज टू यू, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ऐसे किसी को अगर किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रहे हो तो क्या सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो, यू आर अ वंडरफुल पर्सन, यू आर एन अमेजिंग पर्सन, और थैंक यू फॉर बीइंग हु यू आर। है ना, तो इस तरीके के सेंटेंसेस जनरली अप्रिशिएट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। नाउ अगेन एन एक्सरसाइज इज गिवन टू अस, स्टडी द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड हियर, फिल इन द ब्लैंक्स with how you would express your appreciation in the given situations. You can use phrases and sentences you learned earlier. आप लोगों को कुछ phrases और sentences आपने जो अभी सीखे हैं उनका यूज़ करके यहाँ पर इन sentences को फिल करना है, फिनिश करना है, कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। पहली सिचुएशन, यू वांट टू बाय अ बुक बट डू नॉट हैव इनफ मनी, योर फ्रेंड लेंड्स इट टू यू। तो यहाँ पर अब आप कैसे एक्सप्रेस करोगे अपने अप्रिसिएशन को, तो ये आपको बताना है। तो देर आर सम 5 सिचुएशंस विच आर गिवन टू यू एंड यू आर सपोज टू write some appreciation sentences here and then you have to show me. I will let you know whether you have done it right or not. After this, there is again an exercise which is given over here. Assessment is given. What you need to do, you need to fill in the blanks from the options which are given over here. Solve it, send me the screenshot. I will let you know whether it is correct or not. If problems, if corrections, I will be telling you on your screenshot only, okay, whether you have done it correctly or not. Again there is a choose the right word from the bracket. Again some bracket is given and you have to fill it in the blank which is the correct option that has to be filled. All right, so this is it for today. There 2 sessions we covered. There are a lot of exercise and assessments for you, so you have a complete day. Please solve it and then send me the screenshots. After that we will be going to the next session in the next class. All right, so see you students in the next class. Thank you.